Okay, guys, welcome to lecture 17. Today we will discuss some fragmentation pattern again, and we will try to apply those mechanisms on different classes of compound. Just to recall all these mechanisms, we have six mechanisms which are most of the time applicable in the fragmentation pathway. The first one, very important one, is alpha cleavage. And in alpha cleavage, we draw three arrows starting from the free radical, and we break the bond between alpha beta, and that will cause the fragmentation. Second is inductive cleavage, or this is also called the heterolytic fission, in which two electrons move toward the positively charged heteroatom. And then the charge will be placed on the fragment, which is losing electron. Okay, the third one was the elimination or two bond cleavages, and mostly that mechanism is applicable in cyclic structure and alcohols and alkyl halides. Then we discussed the retro-de-Elder reaction, which take place in cyclohexenes, and then McLafferty rearrangement, which take place in carbonyl, in aromatic compound, ethers, and alkene, especially those compounds which have gamma hydrogen. And the last one was tropylium ion, which take place in alkyl substituted aromatic rings. So all these mechanisms you should try one by one in the molecule which you are asked to draw. Okay, so here we start with the first example. The very common, very simple class of organic molecules are alkanes. And you can see that they have only carbon-carbon single bond and carbon-hydrogen single bond. So only sigma type of bonds are present. And since all these sigma bonds are practically identical to each other, they have very similar energies. So any one of sigma bond can lose the electron, and that can be ionized. So the fragmentation can take place at any carbon-carbon bond. So we will have a fragment of 15, we can have fragment of 29, 43. So every carbon can be practically cleaved by a linear strain chain molecule. And if you see carefully, then these fragments have a difference of 14 AMU, and 14 mass tell you that you have one carbon and two hydrogen, because that is the only way you can account for the 14 atomic mass unit. So if in your spectrum, you see that the peaks are separated by 14 AMU, that clearly tell you that you are dealing with a linear alkane, unbranched alkane. The spectrum look like this. We have molecular ion peak at 114, and this is spectrum of octane, normal octane, which is linear chain. How we know that it is linear? Because if you see the difference between masses, they are like 14 unit. 85 to 71 is 14, 71 to 57 is 14 unit. And then 57 to 43, that is also 14 units. So 14, 14 difference indicate that we are dealing with linear alkane. Okay, but the situation is slightly different
when alkane is branched. In Stevenson rule, in lecture 13, I think, or 14, we discussed that the fragmentation will preferably take place at the branch site or branch position. So if our alkane is branched, then branching point will become the prominent places for fragmentation. And that happens because the positive charge which will be created by breaking the branch position will be more stable, because we will have a secondary carbocation or tertiary carbocation which are more stable than the primary one. So that will become the site of fragmentation. So in this 8 carbon alkane, the 2 branching positions can be identified, and the branch will break with the positive charge on the more substituted carbon. So we will have this kind of fragment. So this M over Z will appear at 57. So the fragment in this side, that is secondary in nature, and that is also stable. So that will appear at M over Z 43. So in actual spectrum, you can see this trend that we are not seeing a lot of 14 unit separated peaks. So this is only because the molecule has a branch, and that has caused the fragmentation at the branching point. Okay, any question? So in today's lecture, our focus will be primarily on the molecule and how that molecule will be fragmenting and giving rise different type of peak. So in the future lectures, we will take spectrum without knowing the structure in the first place, and then we will interpret those peaks and reach to the structure. So आज के लेक्चर में आपने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमने ये सारे मैकेनिज्म जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं वो सारे हमने अप्लाई करके तो उसमें देखना है कि फ्रेगमेंटेशन जो अपीयर हो रही है वेदर दैट इज जस्टिफाइड और नॉट. Okay. So mechanism, what is mechanism of alkane fragmentation? So as I mentioned earlier that we are dealing with sigma bonds, and all sigma bonds are essentially identical. So when this molecule is bombarded with the electron beam of 17 electron volts, then any one of these bonds can be ionized. So this is one way to write the ionized molecule, that you draw the whole molecule and place bracket and put positive charge and free radical on top of it. Is this a odd electron system or even electron system? Can anyone tell me? Guys, we should not take that much time. Hello, you guys gone? That's so ashamed. Okay, I'm asking question and everyone is just silent. Sir, odd electron system. This is odd electron system. So you guys have to speak up right away. I don't want to spend even a single minute just waiting for your answer. So when I say that anyone can come up, you have to speak up. Otherwise, I will assume that you guys are just, you know, coming online, logging in into the system and then sleeping somewhere. Maybe you are not attending this lecture. Okay, so this is odd electron system. And we can recognize that from positive charge and free radical sitting
on the bracket. Okay, so this is one way of writing the ionized molecule. Other way is you can actually take the free radical and positive charge at some localized bond. So I assume that the ionization has taken place at this bond. This can take place from this bond as well. This can take place from this bond. This can take place from here. It can take place from here. So practically anywhere where we have the sigma bond. So once you have this ionized bond, then you can simply, uh, assume that uh, because of these molecular vibrations or because of some mechanisms, these fragment will separate, and one fragment will go with the neutral free radical and other fragment will go with the positive charge. And the positive charge ion will be the one which will appear in mass spec. Okay, so that way we can have fragmentation essentially at every carbon. And the spectrum you have seen previously that there is a loss of 15 unit from the molecular ion, and that account from the loss of methyl, and there is a loss of 29 unit, and that 29 is 15 of methyl and 14 of CH2. And then you can continue and see that there is a logical loss of the mass from the molecular ion peak. Okay, quick question. So no question, we continue with that. Now we are coming toward little bit difficulty uh, because the every mechanism is not as simple as the linear chain alkane. So in case of cyclic alkane, we have to apply the mechanisms that we have investigated or discussed in the previous lecture. So first of all, where the ionization will take place. Again, it can take place from any place on the molecule. But just for the simplicity, I will just assume that ionization has taken place. I have placed the positive charge and free radical on top of this molecule. Okay, or in the localized formula, I place this positive charge and free radical in one of the bond where I assume that the electron has moved from this bond, which I am highlighting. And now you apply the alpha cleavage. So alpha cleavage is a homolytic fission. Homolytic mean it is derived by a free radical. So you have to draw three arrows starting from the free radical. You locate alpha atom, you locate beta atom, and then draw three arrows in a systematic way. And the bond between alpha and beta, that will be gone, because here the two arrows are joining, and we will have the loss of 15 mass unit, and the M over Z will appear at this fragment. So without knowing, can anyone tell me that what will be the M over Z of this fragment? Is that odd or even? So even It will be even. Why? The because it electron has a pull. positive sign. Sorry, just one of you. So it has a positive sign. If it has a positive, it does not justify it to be even. सर इसके पास complete number of electrons नहीं है. इसमें odd electron नहीं है. Okay, so one of the odd electron has gone. So the electron system, the electron are even. So E is even. I'm asking about M over Z. This is a mass.
So mass will be even or odd? Sir, odd. It will be Odd. odd. Mass odd होगा. Very good. ये आपने याद रखना है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन नहीं है तो उसमें आपने देखना है कि अगर mass odd है तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसका इवन होगा एंड वाइस वर्सा. ओके, अब चूंकि हमने देखा कि ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म, ड्यूरिंग दिस फ्रेगमेंटेशन, द फ्री रेडिकल गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, and now this ion is a even system. Now it will have even number of electron, so the mass should appear at the odd number, and that is why the mass is appearing at 69 now. Okay, so some other mechanism can also take place, or maybe the same mechanism but a different site. अब देखें यहाँ पे बेटा जो एटम है, there are two beta atoms. अगर आपका ये site of ionization है, this bond, then we have one alpha and then we have two beta. So in the first mechanism, we have selected this methyl group as a beta atom. What if we select the CH2 as a beta atom? Then can we get the alpha cleavage and see what type of fragment will be coming out of this fraction? Let's see that. So again, the three arrows starting from free radical, you will break now bond from this place जहाँ पे एरो टेल्स आपस में मीट कर रही हैं, वहां पे आप इसको ब्रेक करेंगे, और जहाँ पे हेड मीट कर रहे हैं वहां पे आप इसको एक्स्ट्रा बॉन्ड ड्रा करेंगे. So now the fragmentation will cause the elimination of a propene, a double bonded carbon with a methyl group which remain intact with this fragment. So यहाँ से ये fragment जो है वो separate हो जाएगा. अब इस separation के बाद हमारे पास जो fraction, जो fragment रह गया है, that have a free radical and positive charge together. So this is a odd electron and its mass is appearing at the even number. ये information मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम spectrum देखेंगे, we should immediately know कि किस किस्म का fragment ये होना चाहिए. That fragment should contain free radical and charge together or only charge. तो ये आप इसके even और odd nature से find out करेंगे. Okay. All right. Let's see the fragmentation by a different place. What I have done here is I have draw a different Lewis structure of this ionization. इसमें मैंने ये जो free radical है और charge है इनको switch कर दिया है. तो switch करने से अब आप अगर alpha cleavage apply करेंगे तो that will move to a different place. और different place में movement से हमारे पास जो इसमें molecule eliminate हुआ है, that is ethene, 2 carbon alkene, and the fragment appeared at 56. This is odd electron and mass is even. Okay, so let's see the actual spectrum of this molecule. ये आपका molecule जिसको हमने अभी fragment इसके किए हैं. In this the mechanism which we study, only we applied alpha cleavage in all of them. And in alpha cleavage, we saw that the molecular ion appeared at 58. We saw the mass of 56. We saw the mass of 42 at this place, and the mass of 69, which was the loss of methyl, that was also due to the alpha cleavage. So आप इस सारी peak को देख सकते हैं कि how these peaks were originated in this spectrum. And अगर आप देखें कि एक या दो मैकेनिज्म अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो आप बहुत सारी पीक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने स्पेक्ट्रम में. कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी बेटा. सर हम
आयनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल करके डिफरेंट टाइप्स की फ्रेगमेंटेशन करवा सकते हैं? यस, हम करवा सकते हैं, लेकिन टू मेक दिस प्रोसेस reproducible, we always do this fragmentation by using electron impact ionization technique. और उसमें जो एनर्जी है वो दैट इज क्लोज टू 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम प्रिटी मच फिक्स रखते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप इस एनर्जी को कंट्रोल करेंगे देन द फ्रेगमेंटेशन विल बी डिफरेंट, but that will give us different type of fragmentation for same molecule. So वो फिर उसका फायदा नहीं होगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। तो हमने चूंकि ये प्रोसेस को एक यूनिफॉर्म रखना है, इसको रिप्रोड्यूसिबल रखना है, so we always do electron impact with a fixed amount of energy, so that all fragmentation should be repeated in every time you analyze the molecule by EI. यानी Okay, any other question? यानी इस एनर्जी पे सिर्फ अल्फा क्लीवेज होगी? Sorry, no. आपने सारी एप्लीकेशन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आपने सिंपल अल्फा क्लीवेज पे रिलाय नहीं करना। मैंने आपको बताया कि आप इसमें देखें, इसमें बेटा क्लीवेज भी हो सकती थी, बहुत सारी पीक ऐसी हैं जिसको मैंने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया। यू कुड हैव डन इंडक्टिव क्लीवेज, इसके ऊपर टू बॉन्ड क्लीवेज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टू बॉन्ड क्लीवेज अगर आप देखें, ये प्रीवियस यहाँ पे टू बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं यहाँ। अगर आप देखें, जब भी टू बॉन्ड क्लीव होता है तो एक मॉलिक्यूल उसमें एलिमिनेट होता है। सो इसमें टू बॉन्ड क्लीवेज भी हो रही है, एंड दैट टू बॉन्ड क्लीवेज इज टेकिंग प्लेस थ्रू अल्फा क्लीवेज मैकेनिज्म। ओके, इसमें आप इंडक्टिव क्लीवेज भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है दैट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, और उससे भी आपके मॉलिक्यूल में इस तरीका का फ्रैगमेंट बनेगा, एंड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच विल बी एलिमिनेटेड विल बी द एथिलीन। और ये इस फ्रैगमेंट से मिलता जुलता है, दिस फ्रैगमेंट एंड दिस फ्रैगमेंट। अब ये देखें ना, इस फ्रैगमेंट में हमने इंडक्टिव क्लीवेज की है, और ये फ्रैगमेंट बना था थ्रू अल्फा क्लीवेज। सो कुछ बाज़ औक़ात ये होता है कि मल्टीपल मैकेनिज्म आर गिविंग राइज द सेम टाइप ऑफ फ्रैगमेंट। तो उसमें आप किसी एक को सेलेक्ट कर लें। यू एक्चुअली वांट टू रीच टू द कंक्लूजन कि एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट कैसे बना है। वो एक मैकेनिज्म से भी बन सकता है, वो मोर देन वन मैकेनिज्म भी अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, चौथा मैकेनिज्म था रेट्रो डील एल्डर, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास साइक्लोहेक्सीन डबल बॉन्ड नहीं है उसके अंदर, सो दैट वाज नॉट वैलिड। फिर उसके बाद पांचवा मैकेनिज्म मैकलिफर्टी है। तो मैकलिफर्टी में आपके पास पाई बॉन्ड होना ज़रूरी है, पाई बॉन्ड या कम से कम हेटेरो एटम जो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दे एक्चुअली काज द रीअरेंजमेंट ऑफ द गैमा हाइड्रोजन इन मैकलिफर्टी। वो भी इस मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ना तो हेटेरो एटम है इसके अंदर और ना ही इसके अंदर डबल बॉन्ड है। और लास्ट मैकेनिज्म था ट्रोपिलियम आइन, और ट्रोपिलियम आइन जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड पे एप्लीकेबल होता है। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक, सो वी विल नॉट बॉदर टू अप्लाई दैट मैकेनिज्म। तो आप मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल देखें कि इसमें कौन सी चीजें एप्लीकेबल हैं, कौन सी नहीं है। ओके सर। सर बीटा क्लीवेज के लिए आपने बताया था कि ज़ोडिएक को इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है जो भी है, तो इसमें आप किस तरह कह सकते हैं कि इसमें बीटा क्लीवेज होगी? यस, अगेन जब आपके मॉलिक्यूल में लेट्स से कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया है, तो अब ये कार्बन जो है ना पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है कि इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन, इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ, जैसे ऑक्सीजन है। दिस पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटरनल नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। लेकिन इस कार्बन पे आपने पॉजिटिव चार्ज जब इंड्यूस कर दिया है, that can also pull the electron density toward itself. Carbocations are significantly electron puller. तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स हेटेरोएटम इसमें नहीं है,
बट आपका कार्बन जो है that after acquiring positive charge has become very strong electron withdrawing group. ओके तो ये भी ऐसे ही बिहेव कर रहा है जिस तरह हेटेरोएटम बिहेव करते हैं। कोई Okay, और sir. क्वेश्चन? ओके चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। सो अल्कीन, अब जब डबल बॉन्ड आपके मॉलिक्यूल में आता है देन द पाई बॉन्ड बिकम द साइट ऑफ आयोनाइजेशन। सो आयोनाइजेशन को आप लोकलाइज्ड वे में ऐसे शो कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जब आप करते हैं, ड्रॉ करते हैं, the first mechanism which you will try will be the alpha cleavage. तो अल्फा क्लीवेज में आपने 3 एरो खींचनी है और 3 एरो में आप देखेंगे कि अल्फा बेटा जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके तो आपको 2 फ्रेगमेंट देगा। So one fragment with M over the 41 and other neutral fragment which will be lost and you cannot see this fragment in mass spec. ओके अब यहाँ देखें कि इस मॉलिक्यूल में हमने मैक्लिफर्टी अप्लाई किया है। वाई? बिकॉज इसके अंदर गैमा हाइड्रोजन भी है। सो अगर आप यहाँ से अल्फा बेटा और गैमा पोजीशन को लोकेट करें तो ये जो हाइड्रोजन है गैमा पोजीशन पे it has tendency to rearrange and become part of this any of these 2 carbons. तो अब इसमें ये जो 6 मेंबर्ड रिंग ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसकी वजह से ये रीअरेंजमेंट होगी और इसको मैक्लिफर्टी है। आप प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह देखिएगा कि मैक्लिफर्टी कहाँ पे होती है और उसके अंदर एलिमिनेशन क्या होती है। So first of all, the gamma hydrogen that is very close to the site of ionization. So यहाँ पे ये हाइड्रोजन या तो फ्री रेडिकल के जरिए या पॉजिटिव चार्ज के जरिए it become part of the terminal hydrogen. And then there is elimination of a neutral molecule because of this rearrangement. इसमें आप ये देखें कि जो पहले एरो है that is similar to अल्फा क्लीवेज कि आपका फ्री रेडिकल यहाँ से अल्फा की तरफ जाता है और अल्फा बेटा का जो लोन पेयर है that also change its places and one will go and join the free radical and the other one. अब अल्फा क्लीवेज में हम क्या करते हैं कि इस फ्री रेडिकल को बेटा के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन मैक्लिफर्टी में हम इसको यहाँ पे छोड़ते नहीं क्योंकि अब ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर गया है तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल अवेलेबल है। इस फ्री रेडिकल के साथ जो हम बेटा पे छोड़ते थे उसकी बजाय ये दोनों आपस में मिल के एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेते हैं और उससे आपके मॉलिक्यूल में एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये जो 28 मास यूनिट है ये एलिमिनेट हो जाता है और उसके बाद 42 पे आपको मास इसकी आइन जो है अपीयर होगी। और दिस इज रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म। इसकी एक पहचान क्या है? आपने पहले देखा होगा कि जितने भी आयन हैं जैसे ये M over Z ये दिस वाज योर M+, क्योंकि आपने यहाँ आयोनाइजेशन की, आयोनाइजेशन के बाद ये M+ बना। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करें कि इवन मैस से जो फ्रैगमेंट बन रहा है वो ऑड है, ठीक है। जब भी इवन मैस गिविंग राइज टू ऑड मैस और या फिर वाइस वर्सा ऑड मैस गिविंग राइज टू इवन मैस, इसको ये सारे जो फ्रेगमेंटेशन है वी कॉल इट नॉर्मल और सिंपल फ्रेगमेंटेशन। और
फ्रेगमेंटेशन में अल्फा क्लीवेज आ जाती है और इंडक्टिव क्लीवेज आ जाती है, और या सो दीज टू आर प्रोमिनेंट फ्रेगमेंटेशन फॉर द सिंपल। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपका जो मैस है यहाँ पे m प्लस जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है विच वाज 70, and that is giving a mass which is even. So even mass giving even peak, even fragment, that indicate that some rearrangement has taken place. Because without rearrangement you cannot do that. Okay, और जब भी rearrangement होगी, two bond will be broken. One bond जहाँ पे rearrangement होती है और दूसरा बॉन्ड वहां पे जहां से ये फ्रैगमेंट सेपरेट होता है। तो आपको ये जो स्पेक्ट्रम देख के ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, अगर इवन मैस से इवन फ्रैगमेंट बन रहा है तो दैट इज इंडिकेटिंग दैट सम सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट हैज टेकन प्लेस। और अगर इवन मैस से ऑड मैस निकल रहा है या ऑड मैस से इवन मैस निकल रहा है तो दैट इंडिकेट कि सम सिंपल फ्रेगमेंटेशन हैज टेकन प्लेस। एंड सिंपल फ्रेगमेंटेशन में अल्फा क्लीवेज है, इंडक्टिव क्लीवेज है, और जो अल्केन के अंदर सिंपल जो है एलिमिनेशन वो टेक प्लेस कर रहे हैं। ओके, कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, चलें जी। ये जो हमने प्रीवियस मॉलिक्यूल में अल्कीन में फ्रेगमेंटेशन की है उसमें मॉलिक्यूलर आयन पी 70 पे अपीयर हो रही है, तो 42 पे इवन से इवन मैस दैट इंडिकेट रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट कौन सी है? मैक्लेफेर्टी। और रीअरेंजमेंट दो तीन और किस्म की भी होती है, वो हम जब उसका मौका आएगा तो उस वक्त हम उसको बताएंगे। तो मैक्लेफर्टी का मतलब ये होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में मैक्लेफर्टी हो रही है तो आपने इंडिकेट करना है कि देयर विल बी अ डबल बॉन्ड, देयर कुड बी ए कार्बोनिल इन मॉलिक्यूल विद ए गामा हाइड्रोजन, एंड ऑफ कोर्स आपने गामा हाइड्रोजन यहाँ पे बनाना है अल्फा बीटा गामा। There can be a aromatic ring with the gamma hydrogen, alpha, beta, and gamma hydrogen. So all these are very important clues which will be used for the interpretation. और इसके बाद जो 41 की पीक है दैट इज अ सिंपल पीक और सिंपल फ्रेगमेंटेशन है जो इंडक्टिव इफेक्ट से आई होगी। देयर इज वन पीक एट 55। ये 55 जो है दैट इज द लॉस ऑफ 15 यूनिट, और 15 यूनिट जो है अकाउंट आप कर सकते हैं एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन के। अगर आप रूल ऑफ 13 लगाएं 15 पे तो दैट विल गिव यू ए फ्रेगमेंट ऑफ CH3। तो CH3 कैसे एलिमिनेट हो सकता है इस मॉलिक्यूल से? इफ दिस बॉन्ड इज ब्रोकन। और ये बॉन्ड किस तरह ब्रेक हो सकता है? उसके लिए आप इसको अगर आयोनाइज करें इस तरीके से कि ये जो फ्री रेडिकल है यहाँ से फ्री रेडिकल के साथ आपस में मिलके और पॉजिटिव चार्ज इसमें जनरेट करता है, तो एक फ्रेगमेंट बनेगा जो इस किस्म का होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल इज सेपरेटेड, so this mass will appear at odd, क्योंकि ये खुद इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, at that will appear at the odd mass which is 55। okay, तो इस तरीके से odd mass, even mass, odd electron, even electron, they are very important clue to justify what type of mechanism has taken place। okay, question? एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने जिसमें इवन का बता दिया कि रीअरेंजमेंट हो रही है, तो उसमें रीअरेंजमेंट हो के वो स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर की तरफ वो मतलब वो स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं रीअरेंजमेंट करके। वेल देखें, इस पूरी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जितने भी मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे, you have to keep in mind one important thing, and that is they will be slightly different than the organic mechanisms।
हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये कि यू हैव हिट योर मॉलिक्यूल with a very strong energy electron beam, and that has put a lot of energy in your molecule, and molecule is trying to lose that energy by fragmenting in different way. So इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे मैकेनिज्म हैं जो आप ऑर्गेनिक नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा हटके होंगे। तो इसमें कोई मतलब कोलिजन टेक प्लेस नहीं कर रहा। दिस इज ए यूनिमोलेकुलर प्रोसेस। therefore we always assume कि fragmentation is actually trying to stabilize your molecule, to lose some energy by moving electron in a unique mechanism so that the molecule lose some energy and become little bit stabilized. Okay. All right. Alkyne with the triple bond. And now you should start predicting what I am going to do now. So I will first ionize this molecule. So ionization will take place on the pi bond, and one of the pi electron will be lost, gone, and we will have a positive charge on its place. And this fragment, if it survive up to detector, you will see a peak at 68. If it does not survive, then of course that will fragment into different daughter ions. So सबसे पहले तो आप well known mechanism of alpha cleavage 3 bond apply करें. So यहाँ से ये bond break हो जाएगा, and this electron will sit on this beta oxygen, and we will have two fragments. One will go with the free radical and other will go with the charged. अब ये even electron है, that must appear at a odd number, and free radical आपका separate हो चुका है, which will be lost, and we should see a peak at 39 degree, 39 mass. Okay, you can actually apply alpha cleavage in a different way as well, क्योंकि जो alkynes होते हैं, they frequently give the M-1 peak. So just to account for, just to justify how M-1 peak has been obtained from alkyne, we do this mechanism. Alpha cleavage ही हम apply करेंगे, but हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज की जो पोजीशन है इनको स्विच कर देंगे, या अगर स्विच ना भी करें तो दैट विल बी ओके. तो आपने बेसिकली करना ये है कि योर हाइड्रोजन शुड बी इन द बेटा पोजीशन. Okay, and of course this carbon with the positive charge is now alpha, and your ion is free radical is sitting in the site of ionization. तो इसके बाद अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करें, then the hydrogen will be eliminated with the free radical on it. तो आप ये देखा कि हम बेसिकली मैस में M-1 को अकाउंट करना चाह रहे हैं. तो आपका जो हाइड्रोजन है that must go with the free radical, and that is only possible when your hydrogen is at the beta position and alpha cleavage put the electron on hydrogen. So we will end up with this charge with the mass of 67. Okay, अब इसमें इस molecule में luckily we have gamma hydrogen as well. So gamma hydrogen warn us that there will be a McLafferty rearrangement, और उसमें आपका जो gamma hydrogen है that will be shifted from gamma position to the site of ionization, and we will have a 6-member transition state जिसके अंदर बीटा गैमा, so ये जो ग्रुप है
that will come out of the molecule, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें दो टेल आपस में मिल रही हैं और यहाँ पे भी दो टेल आपस में मिल रही हैं, तो ये फ्रैगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, and that fragment is ethylene with the mass unit of 28, and our fragment will appear at 40. Again अगर आप इसको गौर से देखें तो 68 आपका जो M plus ion था, that is giving rise to even number of mass, so that warn us that some kind of rearrangement has taken place, and that was McLafferty. ओके, सो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर आयन पीक एंड दिस इज वेरी प्रोमिनेंट M-1 पीक। ये जो टर्मिनल अल्काइन है जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पे होता है और वी हैव ए CH बॉन्ड, उसमें M-1 बड़ी प्रोमिनेंट पीक उसके अंदर से इमर्ज करती है। So this 61 is that peak which is M-1 peak. इसके बाद हमारे पास ये 40 की पीक है which is not labeled, and this 40 unit has been you know that peak was formed when a mass of this is not molecular ion peak. Molecular ion peak is 68. So 68 में से 40 that is the loss of 28, और 28 जो है that is the mass of CH2 double bond CH2, and दो चीजें यहाँ कंबाइन हो गई, एक तो ये कि इवन मैस से इवन मैस प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इज ए रीअरेंजमेंट, एंड सेकंड इज द लॉस ऑफ 28 यूनिट, दैट इंडिकेट के आपके पास मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट टेक प्लेस हुई है जिसमें बेटा गैमा पोजीशन पे जो कार्बन है दैट हैज एलिमिनेटेड। ओके, ऑलराइट, कोई क्वेश्चन? Okay, let's move on. What about the internal alkyne? Internal alkyne में भी उसी तरीके से identical mechanism take place करते हैं। Oh, I just forgot one thing in the previous spectrum. इस स्पेक्ट्रम में हमारे पास एक पीक आ रही है 53 पे। आप में से जो भी बच्चा जिसको समझ गया है वो मुझे फौरन बताए कि मॉलिक्यूलर आयन से ये 53 की जो पीक बनी है, व्हाट इज द लॉस एंड हाउ यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पीक? सर मिथाइल निकला है इसके अंदर से। वेरी गुड। और ये मिथाइल आप यहाँ से कर सकते हैं किस तरीके से निकला होगा? सो दैट मिथाइल शुड बी दिस वन, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल में आपके पास मिथाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये मिथाइल उसी वक्त लूज होगा जब इसके ऊपर फ्री रेडिकल होगा। तो यहाँ से आपने फ्री रेडिकल रखना है, तो अब ये फ्री रेडिकल आपने यहाँ पे आपकी साइट ऑफ आयोनाइजेशन है, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है या जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ इसको आपने कंबाइन करके, तो आपके पास एक साइक्लिक जो है वो फ्रैगमेंट बनेगा जिससे आप 53 की पीक को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही है जिस तरह हमने अल्कीन में 55 पे आपने पीक देखी थी, तो अल्काइन में भी 53 पे ये उसी मैकेनिज्म के तहत ये पीक आ रही होती है। ओके, yeah, so ionization of internal alkyne, आप पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल को अरेंज करें, उसको आप कार्बन के ऊपर रखें और उसके बाद you will see the molecular ion peak which is very prominent. और अगर ये अल्काइन टर्मिनल होती तो M-1 पीक जो है वो दैट बिकम द बेस पीक, और जब ये इंटरनल होती है तो फिर मॉलिक्यूलर आयन पीक बिकम द बेस पीक। अब यहाँ पे अल्फा क्लीवेज के बाद मॉलिक्यूल में से मिथाइल ग्रुप एलिमिनेट होता है, एंड देन वी हैव द पीक एट 53,
ऑलराइट, सो दैट्स इट। तो इसमें दो ही इम्पोर्टेंट पीक हैं, एक मिथाइल का लॉस है और दूसरा 67 का। अब इसमें एच तो यहाँ मौजूद नहीं है, देर इज नो एच हियर, देर इज अ मिथाइल। देन कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई, हाउ द हाइड्रोजन हैज एलिमिनेटेड? So आपका, this is your site of ionization, that is your alpha atom, this is your beta atom. So in alpha cleavage, alpha beta bond is broken and we have the elimination of methyl. अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है. How I can do that? No one? Come on guys. यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं. अगर ये अल्फा एटम है तो आपका कोई एक हाइड्रोजन बेटा हो सकता है. और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, you should have to make it somewhere beta position. So beta position में ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया. अब आप अल्फा बेटा जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसको यहाँ मूव करें और मेथल को वैसे ही रहने दें. तो उसके बाद आपका सिर्फ हाइड्रोजन इसके अंदर एलिमिनेट होगा. तो आप इसको बड़े आराम से जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आप अल्फा क्लीवेज को अच्छे तरीके से प्ले करें. उसमें आपने अल्फा बेटा इनको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद एरो को प्रॉपरली पुश करें इस मॉलिक्यूल में. ओके, ये क्लियर हो गया ये पॉइंट, हाउ वी गेट 67 फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल? यस सर. ओके, गुड. चैलेंज. नाउ एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान ये है, दे विल हैव ए वेरी स्टेबल मॉलिक्यूलर आयन पीक. और इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, जो अगर बेंजीन का अगर आप स्पेक्ट्रम देखें तो फ्रेगमेंटेशन इज नॉट इनकरेज्ड. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एरोमेटिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल. तो इसमें आयोनाइजेशन, one of the pi bond will be ionized and then there will be fragmentation. अब इसकी fragmentation बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अल्फा क्लीवेज एंड बेटा क्लीवेज. ये टू बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे होगी. जैसे मैंने पहले बताया था कि एलिमिनेशन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, दे विल फ्रैगमेंट ओनली इफ दे ब्रेक टू बॉन्ड. तो अल्कीन की फॉर्म में या एरोमेटिक फॉर्म में हमें जो डबल बॉन्ड के अराउंड में जो सिंगल बॉन्ड है, दैट विल गिव टू बॉन्ड क्लीवेज. और उसमें जो लॉस होगा दैट विल बी 28 mass लॉस. सो यहाँ से अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो one of the peak will account for the loss of 28, which is of course that is acetylene. This is the loss of 26. क्योंकि आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड तो उसके अंदर पहले ही है. तो you have carbon attached with the hydrogen and then we have a triple bond and then hydrogen. So that is 26 unit mass, or one of that peak will be especially the peak at 52. This peak that account for the loss of loss of 26. और लॉस ऑफ अगेन, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इवन मैस से इवन मैस जब निकलता है तो उसमें एक तो रीअरेंजमेंट का आपको मैंने बताया था, दूसरा ये कि इट मस्ट बी टेकिंग प्लेस थ्रू द टू बॉन्ड क्लीवेज. तो टू बॉन्ड क्लीवेज आपको इस तरीके से ड्रा करनी है. बेसिकली 4 एरो आपने खींचने हैं किसी भी सिंगल बॉन्ड के राउंड में या डबल बॉन्ड के राउंड में. और दो बॉन्ड जो है, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में लिख के, तो या तो आप इस तरीके से मॉलिक्यूल ड्रा कर दें और या फिर इसको लोकलाइज्ड वे में आप लिख दें. तो दोनों सूरतों में इट इज़ एक्सेप्टेबल.
अब यहाँ से भी फ्रेगमेंटेशन होगी क्योंकि ये अल्कीन यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड के दरमियान में 4 arrow rearrangement and then the loss of 26 unit still from 52 to 26 unit. तो यहाँ से भी आपके पास एसेटलीन C2H2 इसमें एलिमिनेट होगी. ओके, क्वेश्चन. ऑलराइट, चलें जी. Now the aromatic compound which are substituted. अब ये देखें aromatic ring with the alkyl substituent है, and the first peak will be the formation of tropyliamine because that is now the most important peak. तो इसमें आप सबसे पहले आयोनाइजेशन लोकेट करें. आयोनाइजेशन के बाद आप इसमें अगर आप यहाँ देखें, दिस इज योर हाइड्रोजन, यहाँ पे बाकी 2 हाइड्रोजन हैं, तो आप इसको अल्फा क्लीवेज में एज्यूम कर लें. ठीक है, सो अल्फा क्लीवेज, ये मैं इसको क्लीन करता हूँ. सो अल्फा क्लीवेज में फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा and we will have the loss of 1 unit, and this loss of 1 unit actually tell you the peak of 91. लेकिन ये peak काफी बड़ी है. It is a base peak. A base peak indicate that it is very stabilized. तो stabilization इस फॉर्म में तो पॉसिबल नहीं है, तो हम ये assume करते हैं. Actually there is a experimental proof कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है रिंग के अंदर और डबल बॉन्ड जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, दैट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद आपका एरोमेटिक रिंग रिस्टोर हो जाएगी एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द टर्मिनल साइड. ओके, अब यहाँ से आपका मॉलिक्यूल जो है वो ट्रोपिलियमाइन में कन्वर्ट होता है. उसका क्या मैकेनिज्म है कि दिस सिंगल बॉन्ड इट अंडरगो अनदर रीअरेंजमेंट, और उसके बाद इंटरमीडिएट एक बनेगा जिसमें ये 6 मेंबर्ड से निकल के 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी. एंड इफ वी प्लेस द बॉन्ड इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर, अब यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव एट दिस प्लेस, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन हैं ये आपके इधर ही पड़े रहेंगे. ओके, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर शिफ्ट करता है इस पॉजिटिव चार्ज पे, और उसके बाद आपका जो ट्रोपिलियमाइन है ये कंप्लीट हो जाता है. तो अब इसमें हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड दे आर डीलोकलाइज्ड, and this is very stable molecule. You can see that it has very minimal fragmentation, and this has become the base peak of the alkyl substituted aromatic ring. अब इसके अंदर अगर ये जो फ्रेगमेंटेशन आपको नजर आई है, that fragmentation is again 2 bond cleavage. जिस तरह आपने एरोमेटिक रिंग में देखा था कि आपकी जो डबल बॉन्ड के अराउंड में जो सिंगल बॉन्ड है, दे विल बी क्लीव्ड, और वो आपस में साइक्लाइज हो जाएंगे, और इसके बाद इसमें एक CH2 और C2H2 का फ्रैगमेंट इसमें से लॉस हो जाएगा. So again, this is a lot of rearrangement other than McLafferty. मैंने आपको पहले कहा था कि rearrangement McLafferty is well known, but there are some other type of rearrangement, जिस तरह आपने यहाँ ट्रोपिलियमाइन में देखा कि molecule undergo a lot of rearrangement reactions. Okay, so tropyliamine with mass 91, that is the base peak, and उसके बाद इसके अंदर जो fragmentation हो रही है, that is a 2 bond cleavage, जिसमें आप 4 arrow push करते हैं across the single bond around a double bond,
and acetylene will be eliminated, and 7-membered ring will reduce to 5-membered ring, and then further elimination of acetylene will cause the reduction of 5-membered ring to 3-membered ring, और acetylene molecule उसमें से eliminate हो जाएगा, और उसके बाद -26 पे आपको additional peak यहाँ पे नजर आएगी. ओके, क्वेश्चन. सर यहाँ पे एसिटिलीन मतलब कैसे वो फ्रेगमेंट हुआ है? किसमें? ये एसिटिलीन मतलब ये कैसे निकल गया यहाँ, मतलब कैसे ये दिस एरो आपको नजर आ रहे हैं, ये एरो ट्रोपिलियम आइन में. सही 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 समझ आ गई. तो ट्रोपिलियम में अगर आप देखें कि आपको 2 बॉन्ड एलिमिनेशन, दिस इज अ मैकेनिज्म नंबर 3. अगर आप प्रीवियस लेक्चर में जो मैकेनिज्म नंबर 3 को अगर देखें, दैट इज एलिमिनेशन विच रिक्वायर्ड 4 एरोज. आपने क्या करना, क्या होता है कि जहां जिस बॉन्ड को आपने एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन हमेशा अगर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस होगी तो आपको एसेटिलीन उसमें से निकलती नजर आएगी, और अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस है तो उसके अंदर एसेटिलीन नजर आएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. सो जो डबल बॉन्ड है उससे एसेटिलीन निकलती है, जो सिंगल बॉन्ड है उससे एथिलीन एलिमिनेट होती है. दिस इज ए मास यूनिट ऑफ 28, दिस इज मास यूनिट ऑफ 26. तो ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म साइक्लिक स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है. तो ये मैंने 3-4 दफा आपको बता दिया है कि वेन एवर यू हैव ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, there is a possibility of elimination, which is mechanism number 3. और इस mechanism में you actually push 4 arrows across a single bond or across a double bond, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें या तो एथिलीन निकलती है या उसमें एसेटिलीन निकलती है. Question? Okay, let's move on. We have now aromatic ring which is slightly bigger side chain. तो इसमें can anyone guess other than the fragmentation in the previous molecule? हमने previous molecule में toluene था हमारे पास, तो toluene में हमने fragmentation देखी कि ट्रोपिलियम आइन बनता है प्रोमिनेंटली, और उसके बाद एसेटिलीन उसमें से एलिमिनेट होती है. आप इसमें कोई एडिशनल मैकेनिज्म गेस कर सकते हैं? इज देयर एनी अदर मैकेनिज्म टेकिंग प्लेस इन दिस मॉलिक्यूल? So this has a gamma. गैमा है, वेरी गुड. तो कौन से गैमा हाइड्रोजन की वजह से क्या होगी? लेफर्टी. मैकलेफर्टी, वेरी गुड. सो गैमा हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए जो हमने टॉलवीन में मैकेनिज्म देखे थे, ऑल ऑफ देम विल बी अप्लाइंग हियर, बट एडिशनली वी हैव ए गैमा हाइड्रोजन, सो वी विल सी ए पीक ड्यू टू द गैमा हाइड्रोजन. अगर आप मैकलेफर्टी को अगर आप क्विकली इसमें से स्कैन करें तो आपको कौन सा यहाँ पीक इंडिकेट कर रही है कि वो मैकलेफर्टी से हो सकती है? कौन सी हो सकती है? Okay, I think no one know. That is when 91? even mass is eliminating from the even. Okay, sir. So even mass से even fragment अगर बनता है तो that indicate rearrangement, and that also indicate two bond cleavage. Okay, so ये आपका बड़ा important clue होता है कि अगर आपने quickly without doing anything, if you want to figure out कि इसमें अगर एडिशनल मैकेनिज्म हुआ है मैकलिफर्टी का तो वो किस जगह पे हुआ होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इट माइट बी द पीक, इवन पीक, जो कि इवन मैस से निकली है. ओके, सो फ्रेगमेंटेशन, आयोनाइजेशन फर्स्ट, and then alpha cleavage to eliminate one fragment ion, and we will have this benzylic type cation
जो कि रीअरेंज होगा ट्रोपिलियम आयन में, और इसका मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्क्राइब किया है कि हाउ दिस मैस दिस आयन विल कन्वर्ट टू द ट्रोपिलियम आयन। तो इसमें ऑफ कोर्स ये रीअरेंजमेंट है इस डबल बॉन्ड की, वो इंटरनल मूव करेगा, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज के बाद रिंग एक्सपैंड होगी, फिर वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे मूव करेगा टू मेक द ट्रोपिलियम आयन, और 91 की पीक इज बिकॉज ऑफ दैट ट्रोपिलियम आयन। और इसके अंदर गैमा हाइड्रोजन भी है, तो गैमा हाइड्रोजन की वजह से मैकलेफेर्टी रीअरेंजमेंट होगी, और उसके बाद हमारे पास एक जो पीक आएगी, ये सॉरी दिस हैज नथिंग टू डू विद 91 इज डिफरेंट। सो अब इसका जो मैस है दैट इज 92, एंड 92 जैसे मैंने पहले बताया था कि यू शुड ऑलरेडी गेस कि which one of them will give rise to the McLafferty rearrangement. Okay, question. सर यहाँ पे ट्रोपिलियम आयन मजीद फ्रेगमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और ये देखें अगर आप ये फ्रैगमेंट होते हैं छोटे छोटे से, तो इसमें एसिटिलीन जो है ना 26 का लॉस, यानी 91 से अगर आप 91 से 26 को माइनस करें, क्योंकि 91 आपका ट्रोपिलियम आयन है, तो इसमें से लॉस करेंगे लूज करेंगे, तो इसमें जो पहला 65 फ्रैगमेंट से। बनता है वो 65 पे बनता है। तो अगर आपका ये 50 है तो दैट विल बी 60, एंड दिस वन इज योर 65 पीक, जो यहाँ पे लेबल नहीं है। लेकिन उसके बाद आप 26 को और इसमें से फ्रैगमेंट करेंगे, तो इसमें से 9 और 39 पे पीक होगी। सो दिस इज 25, 30 एंड दिस इज 40 एंड दिस इज योर पीक एट 39। तो आप ये देख रहे हैं कि फ्रैगमेंट तो मौजूद है, बट जब आप एनालिसिस करते हैं तो जो प्रोमिनेंट पीक हैं, जो बड़ी बड़ी पीक हैं, उनको आप पहले जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड उसके Okay, बाद आप जो छोटी पीक हैं उनको भी अगर आप जस्टिफाई करना चाहें, यू कैन स्टिल डू दैट। ओके, लेट्स मूव ऑन। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में हमारे पास जो एक चीज आपने याद रखनी है, दे आर नोटोरियस टू प्रोड्यूस द मॉलिक्यूलर आयन पीक। सो अगर आपको कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि देयर इज ए order of appearance of molecular ion peak in mass spec. So alcohols were actually at the terminal site. These are the molecules which rarely show the molecular ion peak, and that is because of the dehydration, the elimination of water molecule. So two common mechanism, again the alpha cleavage, और अल्फा क्लीवेज में try to lose the bigger alkyl radical. That is a preferable. Although you can eliminate other fragment as well, लेकिन bigger alkyl radical से molecule ज़्यादा stabilize होता है, तो आपने उसको preference देनी है। दूसरा जो इसके मैकेनिज्म है, अल्फा रेडिकल के अलावा हाइड्रोजन, जो अल्कोहल में डी हाइड्रोजन होती है, एंड डी हाइड्रोजन इज द मैकेनिज्म नंबर 3। अगर आप ओरिजिनल मैकेनिज्म देखें तो उसमें मैकेनिज्म नंबर 3 जो मैंने बताया था, दैट इज एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन अल्कोहल में वाटर की एलिमिनेशन होती है। तो एलिमिनेशन दो तरह से हो सकती है, एक तो केमिकल एलिमिनेशन है जिसको 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं। ये जब भी आप अल्कोहल को हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, then hydrogen and OH, which are adjacent, they can eliminate with the formation of a double bond, they can eliminate as a water. So ये thermal dehydration भी observe होती है मास पैक में, क्योंकि आप मॉलिक्यूल को हीट करते हैं जब आप उसको वोलाटाइल कर रहे होते हैं, तो दैट माइट बी पॉसिबल your alcohol has already dehydrated before it was bombarded with the electron. अगर यहाँ पे इसकी डिहाइड्रेशन नहीं होती, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ मॉलिक्यूल विल अंडरगो दिस थर्मल डिहाइड्रेशन,
then we will see this elimination, the mechanism number 3, which is 1-3 elimination, which is prominent. It can be 1-3 elimination, 1-4 elimination, 1-5 elimination. इसमें एक तो वाटर इसके अंदर एलिमिनेट होता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर लूजिंग H2O from the molecule in this dehydration. Sometime water and ethylene, they are eliminated simultaneously. और ये उससे मिलता जुलता है, जिस तरह मैकलैफर्टी में हम देखते हैं कि एथिलीन और बाकी जो रीअरेंजमेंट है वो टुगेदर हो रही होती है, तो उसी से मिलता जुलता। आप ये देखेंगे सारे मैकेनिज्म मोर और लेस आइडेंटिकल हैं। आपको अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो एनी न्यू मैकेनिज्म विल बी इजियर टू एडजस्ट इन द प्रीवियस knowledge. One less common fragmentation is heterolytic cleavage. Heterolytic जिसको inductive cleavage कहते हैं. Suppose आपके पास एक अल्कोहल है जो आप ऑक्सीजन पे आयोनाइज करते हैं, तो heterolytic cleavage का मतलब ये है कि ऑक्सीजन because of electronegativity and because of the positive charge, it will pull the electron from the adjacent bond toward itself, और उससे ये जो फ्रैगमेंट यहाँ से बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका अल्काइल चेन पे रह जाएगा, और आपका जो OH है दैट विल बी एलिमिनेटेड एज ए फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल आपका इंटैक्ट है. पॉजिटिव चार्ज वाज एलिमिनेटेड व्हेन यू मूव 2 electron on the oxygen and then positive charge appeared on the carbon chain. ओके, यहाँ इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. 1-pentanol, ये हमने पहले डिस्कस कर ली है इन द प्रीवियस लेक्चर्स. आपका जो मॉलिक्यूल है दैट विल बी आयोनाइज्ड ऑन द हाइड्रोक्सिल पोजीशन and then we apply the alpha cleavage. Alpha cleavage will cut this molecule from the alpha beta position and we will have the neutral free radical which is lost, and then a fragment ion at 31. और अल्कोहल में स्पेशली प्राइमरी अल्कोहल में जो MZ जो 31 है दैट इज ए वेरी डायग्नोस्टिक पीक. It you can call it diagnostic peak for alcohols, especially primary alcohols. So इसमें आप देख लें कि जो मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है दैट इज अल्फा क्लीवेज. और ये डायग्नोस्टिक इसलिए है कि अब यहाँ पे आप चाहे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो आपका जब फ्रैगमेंट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एज लॉन्ग एज द अल्फा कार्बन इज CH2, देन यू विल ऑलवेज गेट द सेम M/Z. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में आपके पास यहाँ CH2 ही होगा, तो आपके पास यहाँ मॉलिक्यूल में कुछ भी हो सकता है. इट कैन हैव वॉट एवर यूनिट यू कैन पुट इट हियर. They will be lost as a free radical and only molecular ion, the fragment ion will appear at 31. That is why a peak at 31 is a diagnostic peak for alcohols. उसके बाद 1,4 dehydration यहाँ पे दिखाई हुई है, सॉरी दिस इज 1,3 और यहाँ पे 1,4 है. सो ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म है. जो मैकेनिज्म 4 है, आपने यहाँ पे 4 बॉन्ड 4 एरो आपने पुश करने हैं. एक एरो जो है वो ऑक्सीजन को OH के साथ हम मिला के तो उसमें वाटर को एलिमिनेट करेंगे, और बाकी जो रेस्ट जो रेडिकल एंड पॉजिटिव चार्ज हैं दे विल बी rejoined in the form of a line, and you can place the positive charge free radical on bracket, and that mass will appear at 70. और इसमें जो 1,4 elimination है, इसमें आप देखें कि वाटर एंड एसेटिलीन दे आर eliminating together. आप इसको इंडिविजुअली भी एलिमिनेट कर सकते हैं. इंडिविजुअली एलिमिनेट करते तो आपका मैस जो है वो 71 पे आता. अगर आपने एथिलीन भी इसके अंदर एलिमिनेट की है then the M/Z will appear at 42.
ओके, तो आप इसमें कुछ क्लू आप जो है वो नोट करते जाएं कि इवन मैस से जब इवन फ्रैगमेंट बनता है तो या तो ये रीअरेंजमेंट को शो करेगा या फिर ये टू बॉन्ड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन को इंडिकेट करेगा। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू कि आप हर जगह पे इसको देखेंगे कि दैट इज बीइंग अप्लाइड। और जहाँ पे इवन मैस से ऑड मैस निकलता है तो दैट इज अ सिंपल क्लीवेज जिसमें अल्फा क्लीवेज इज द प्रोमिनेंट वन। Okay, so the spectrum, we have the molecular ion peak at 88, we have the loss of 18 unit. So यहाँ से यहाँ तक जो है that is the loss of 18, which is of course water. And then from 88 to 55, that is loss of 18 plus maybe 28. Let's calculate 88 minus 55, this is 33. So 33 किस वजह से हो सकता है? Can anybody guess what will be 18 plus 15? That is 33. So that 55 is the loss of methyl CH3 plus H2O. तो ये जब कंबाइन होके एलिमिनेट होते हैं तो we have the peak at 55. And then 42 is the loss of ethylene and water together. Okay, so peak at 70, हमने इसको प्रीवियस मैकेनिज्म में देखा था ये कैसे बनता है। उसके बाद 55 है, that is loss of water and methyl. And then we have 1,4 elimination where water, H2O and CH2 double bond CH2, they were eliminating together. So 18 unit from water and 26 unit from 28 unit from ethylene, and that is a unit of 46, and 46 plus 42, that is 88 mass unit. और ये 31 की जो peak है, this is the diagnostic peak for primary alcohol. All right, question. Okay, if we have no question, we stop here. Next हम कुछ और मॉलिक्यूल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें प्लीज़ आप इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा और जितनी दफ़ा आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस करें इन सारे मैकेनिज्म को, इन सारी एग्जांपल को, और होपफुली बाय द एंड ऑफ next week, next 2 lecture, I expect most of you will be master in fragmentation analysis. Thank you very much, and Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.